कहते हैं कि मनुष्यों के निर्माण में समय का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ही उतार चढ़ाव भरे समय में मनुष्यों ने अपने आप को ढाला ही नहीं बल्कि उन्नत भी किया। समय के साथ ही उन्होंने सामाजिकता सीखी और आपसी मेलजोल भी, और इसी तरह विभिन्न समुदायों की उपज हुई जिनको एक धागे में पिरोया उन्हीं की संस्कृति, नीतियों और मान्यताओं ने। करीब 300 वर्ष पूर्व दूर दूर से आए प्रवासियों से जन्मे एक छोटे से कस्बे यल्लापुर में शुरू हुई एक अनोखी परंपरा, जिसमें विभिन्न समुदायों और वर्गों के लोगों ने एकत्रित होकर कस्बे की देवी, अपनी ग्राम देवी के विवाह का जश्न मनाया। आज भी पिछली 3 शताब्दियों से उत्तर कन्नड़ जिले के इस छोटे से कस्बे में ये प्राचीन प्रथा हर 3 वर्षों में मनाई जाती है। यहाँ के लोग इसे जात्रे बुलाते हैं, एक मेला जहां उस कस्बे की संस्कृति के कई पहलुओं का संगम होता है। और इसीलिए हम चल पड़े हैं इसी अनोखी प्राचीन और सांस्कृतिक जात्रे का अनुभव करने और आज के आधुनिक दृष्टिकोण से इसे जानने और परखने। आखिरी बार जात्रे का जश्न यल्लापुर में 5 वर्ष पूर्व मनाया गया था। कोरोना महामारी के बाद लोग पहली बार इस जात्रे के जश्न को मनाने के लिए अति आनंदित और उत्साहित हैं। हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है। लोगों का कहना है कि यल्लापुर का अब तक का ये सबसे बड़ा जात्रे होगा। तैयारियों का शुभारंभ जात्रे के 4 सप्ताह पूर्व ही हो जाता है। वहां अगले 4 सप्ताह हर मंगलवार को लोग अपनी परंपरा होरा मंगलवारा के रिवाज के अनुसार देवी के आगमन में अपने घरों से प्रस्थान करते हैं। ಹೊರಮಂಗಳವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದು ದೇವಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ಏನು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ರೆಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಿನ 9:30 ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಅಥವಾ 4:15 ನಂತರ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। आयोजन की तैयारियों का केंद्र 4 स्थान होते हैं। ग्राम देवी मंदिर, शले मंदिर, मेले का स्थान और गद्दिगे, वो स्थान जहां देवी को लेकर जाया जाता है। ಈ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಆಗೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನು ಸೋನಾರ, ಅವನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗುಡಿಗಾರರು ಕಾಷ್ಟಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುಡಿಗಾರರು ಬಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ವಗೇರೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧದಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತೀಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ದಶಾವರ್ಗದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚಾರಿಗಳಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣೆಗಿಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು,
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರಿಗಳು ಬೇಕು. ಆಚಾರಿಗಳಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದವರು ಅವರು ಬೇಕು, ಹವ್ಯಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದವರು. ಅವರು ಯಜ್ಞ ಆಗಾದಿಗಳನ್ನು, ಕಲಾವೃದ್ಧಿ, ಕಲಾ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ದಶಾವರ್ಗದವರು ಸೇರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸ, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ, ಜಲವರ್ಣ ಏನಂತೇವೆ, ಆ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. देखकर लगता है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था के मुताबिक काम के भाग करने की प्रथा यहां आज भी जारी है. कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3 शताब्दियों पूर्व यल्लापुर से कुछ ही दूर स्थित नारायणगिरी नामक स्थान से. उस समय यल्लापुर में कोई भगवान की मान्यता नहीं थी. एक दिन जब एक किसान वहां स्थित अपने खेत में जा रहा था तो उसे जमीन में 2 देवी की मूर्तियां मिली. और जब वो उन्हें यल्लापुर के बाकी लोगों को दिखाने लगा तब से वो लोग उन्हें अपना रक्षक मानने लगे. और इस तरह शुरू होती है कस्बे में ईश्वरोपासना. ನಾರಾಯಣಗಿರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾರಾಯಣಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಂದರೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಾಠಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ವಾಸವಾಗಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಈ ಬದಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಅವಾಗ ಈ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಡು ನಾಡು ಭಾಳ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು ಅವರು. ಇವಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಆ ಜನ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು, ಉಪಾಸಕರು, ಶಿವಾಜಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜನರು ಈ ಅಮ್ಮನವರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಮಾವಳ್ಳಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಾದವು, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದವು. कस्बे में मूर्तियों की उत्पत्ति के कई और किस्से कहानियां भी हैं, लेकिन नारायणगिरी वाली कथा सबसे प्रचलित और माननीय मानी जाती है. ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಇದರ ಕಾಲದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯ 300ರಿಂದ 400 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ಅಂದರೆ ದೇವಿಯ ತಾಯಿಮನೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದನೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದವರು ದೇವಿ ತಾಯಿಮನೆ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗಿ ಇತರೆ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಲಗ್ನ ಆದಳು. ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಂಗ ತಯಾರಿ ಮದುವೆಯ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ 4 ದಿವಸದ ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ದೇವಿಯ ಮದುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ 8 ದಿವಸದ ಮದುವೆ. आइगर परिवार को कस्बे की देवी का वंशज माना जाता है, इसीलिए वैवाहिक अनुष्ठान के सारी रीति रिवाज का दायित्व उन्हीं को सौंपा गया है. हालांकि जुलूस कल से शुरू होगा, लेकिन कुलदेवी का विवाह निश्चित रूप से जात्रे का एक अहम हिस्सा है. सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से देवी का विवाह शुरू हो रहा है.
यज्ञ संपन्न होने के बाद दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और देवी की मूर्तियों की साड़ियां बदली जा रही हैं। स्वर्ण रत्नों से बने आभूषणों से मूर्तियों को सुसज्जित किया जा रहा है। यहां के लोग देवी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इसीलिए शादी का जश्न भी उसी तरह मनाते हैं। जैसे हर विवाह में होता है, अब दुल्हन यानी देवी अपने ससुराल गड्डिगे जाने के लिए तैयार है। और इस तरह यल्लापुर और हम तैयार हैं जश्न के पहले खास दिन के लिए। सूर्य की पहली किरण के साथ ही जश्न का प्रथम दिवस शुरू होता है कुंभार कोटे नामक स्थान से। मंदिर के पुजारी कुंभार कोटे की प्रथा में सदियों पुराने पेड़ की पूजा कर रहे हैं। ಕುಂಬಾರ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕುಂಬಾರರ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಆ ಕುಂಬಾರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಕೋಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಂಬಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ವಹಿಸಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಆವಾಗ ಹೋಳಿಗೆನೋ ಇದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಭೂತರಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. दूसरी तरफ लोग उत्साह में धीरे धीरे मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। रंग बिरंगी रंगोलियां और फूलों से सड़कों को सजाया गया है। ढोल वादकों, नृत्यकों और कलाकारों का एक समूह उत्सव में शामिल होता है। इस बीच मुख्य मंदिर खचाखच भरने लगा है, क्योंकि देवी को गदिगे में ले जाने से पहले किए जाने वाले रस्मों का पालन हो रहा है। अब शिले मंदिर के आसपास भी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। शिले देवरू को देवी का भाई माना जाता है। ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಿರಾಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಿರಾಚಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಶೆಳೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಮ್ಮದು. ಮೂಲತಃ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ ದೇವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಸಂಗಡ ನೆಲೆವೆಂದು ನಿಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಜಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಾಗಢ ಅಂತೇವೆ. ಶಿವಾಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೋ ಆವಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿ ಜನ, ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಯೂರಿದರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ರಣವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಂದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಪೀಠದಿಂದ ಏಳಿಸಿ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೇ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मिराची अब हेलिके के लिए तैयार है। एक ऐसी प्रथा जो कस्बे की समृद्धि के लिए की जाती है। इस कथन के बाद ही रणा यानी बैंड की यात्रा शुरू होती है।
ढोल नगाड़ों की ध्वनि और तीव्र हो गई है, जिससे उत्पन्न हवा के कंपन से मंदिर के किनारे खड़ी महिलाएं नाच रही हैं। दोनों मूर्तियों को बाहर लाया जा रहा है। देवी के भाई उन्हें उनके ससुराल गदिगे तक विदा करने के लिए यहां आ गए हैं। और अब शुरू होती है देवी की एक अनोखी यात्रा, जिसमें लगभग 200 किलोग्राम वजनी प्रत्येक मूर्ति को बिना पालकी के सीधे सर पर रखा जाता है। People believe that it's a God's will that takes the procession in whichever direction it. But in reality, I don't think that's the reason. I mean, there is a little bit of a scientific value to that, because when people hold the God on their head, there is a group of people who surround it, who hold that. It's at least about 15-20 people or even more. Now, in that crowd, in that small crowd, when you are holding that, with on your head, you become, as an individual, you become directionless. You wouldn't know where you are actually navigating. So it is the people surrounding it who actually guide the procession to where it has to go. भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति देवी को उठाना चाहता है, और जिन्हें ये मौका नहीं मिलता, वो सभी उसे कम से कम छूने का प्रयास अवश्य करते हैं। जैसे जैसे जुलूस कस्बे की संकरी गलियों से होकर गुजरता है, पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। उस अनोखे पल की भव्यता को देखकर भीड़ में खुद को छोटा महसूस करना आम बात है। देवियां आखिर गदिगे पहुंच गई। अब अगले 8 दिन तक यही उनका घर है। It adds to that aura. I mean, when you look at it as a jatra, as a procession, and that happens, I think you would have seen the crowd that has gathered there. I think they were estimating more than 60,000, and I believe that's what the strength was. I mean, that's what newspaper also reported. It was over 60,000 people that gathered. प्रथा और रिवाजों से भरा पहला दिन जैसे ही समाप्त होता है, हमें एहसास हो रहा है कि ये जुलूस जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक भव्य है। पिछले दिन की लगातार भागदौड़ के बाद आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है। गदिगे लोगों से भरी हुई है और आज के दैनिक रीति रिवाज शुरू हो गए। न केवल यल्लापुर से, बल्कि आसपास के कस्बे और यहां तक कि दूर दराज के शहरों से भी लोग यहां इस अनोखी यात्रा का अनुभव करने आए हैं। हुबली, कारवार, अंकोला, पंजिम और कई अन्य शहरों की ओर जाने वाले रास्ते अधिक भीड़ के कारण रुके हुए हैं। गदिगे के बाहर एक झोपड़ी बनाई गई है जिसे मातुंगी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये देवी के पति के घर का प्रतिनिधित्व करता है।
सभी भक्तगण गद्दिगे में होने वाली विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं में भाग लेते हैं। इनमें से मुख्य रूप से देवी को उड़ी अर्पण करना शामिल है, जिसमें भी विशेष रूप से रेशमी उड़ी, देवी को रेशम की साड़ियां भेंट करना है। ये रिवाज भक्तों द्वारा अपनी आराध्य देवी को अर्पित आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसके बदले में वे अपनी सफलता की प्रार्थना करते हैं। वहीं दूसरी ओर विवाह के जश्न के उपलक्ष्य में निशुल्क भोज का आयोजन किया जा रहा है। जो साड़ियां उड़ी के रूप में देवी को अर्पित की जाती हैं, शाम को उनकी नीलामी होती है। इसीलिए देवी के पैरों के नीचे रखी साड़ियों की नीलामी करने वाले काउंटर के आसपास भीड़ एकत्रित हो गई है। हर कोई इन पवित्र वस्त्रों को अपने घर ले जाना चाहता है। इसी प्रक्रिया की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है मंगल आरती। ये जात्रे के अंत तक गद्दिगे में हर दिन 2 बार की जाती है। आरती के दौरान देवी की स्तुति में भजन गाने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। ಇಲ್ಲಿಯ ಊರಿನವರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಈಗ ಇವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಈ ಊರಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದವರು, ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅವರಾಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಉಡಿ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅದು ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ಈ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಆ ಇದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಊರವರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। इस बार मेला काफी बड़ा और दुकानें भी बड़ी संख्या में लगी हैं, जिससे आने वाले सप्ताह के लिए लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। अब कल हम निकलेंगे इस जात्रे के एक और अहम हिस्से का अनुभव करने के लिए। इधर गोवा से आया, गोवा में सेटल हैं, उधर ही रहते हैं और यात्रा हर कर्नाटक साइड का यात्रा करते हैं। अब इल्लापुर का यात्रा इस टाइम पे लगता है तो इसलिए अच्छा है वो यात्रा। वो होली के नज़दीक में लगता है, त्यौहार के टाइम पे, तो उसमें बहुत अच्छा बिजनेस भी होता है और लोग हैं जो लेने वाले वो ख़रीद भी लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि त्यौहार के बिल्कुल वक्त में लगता है वो यात्रा। मेले में सजी दुकानें आज पूरी तरह तैयार हैं 50,000 से अधिक लोगों का स्वागत करने के लिए। यहाँ के दुकानदार काफी समय से इसका इंतजार और तैयारियां कर रहे थे। कईयों के लिए यही आने वाले कुछ महीनों के लिए उनके राशन पानी की व्यवस्था करेगा। गरम गरम घी, जलेबियों और अदरक काजू से बने यहाँ के अनोखे नाश्ता, खाजा माजा की सुगंध हवा में घुल मिल सी गई है। ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೇವಿ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಉತ್ಸವ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ದೇವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೂತಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರು ತಿರುಗಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಅವರು ಕೂತಿದ್ದು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತವ ಈ ಉತ್ಸವ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಭಾಳ ಜನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ। लोगों को इन छोटी छोटी खुशियों में हर्षोल्लासित होते देख दिल भर आता है। शाम होते ही रंग बिरंगी लाइटें पूरे कस्बे को जगमग कर देती हैं।
हर उम्र के लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं। बच्चों में तो खासकर मिठाइयां, झूलों, खिलौनों से खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इतनी भव्यता में भी इस शहर की सादगी अलग ही चमकती है। यहां के लोगों के लिए ये अपने दैनिक जीवन और काम से छुट्टी है, परिवार के साथ समय बिताने का मौका है और मनोरंजन के साथ ही अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोने जैसा है। मेले में रातें न केवल खेल, खाने पीने और झूलों की सवारी के लिए बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी आरक्षित है। यहां नाटक बड़े टेंटों में आयोजित किए जाते हैं जिसमें अच्छे सेट, लाइट्स और संगीत होते हैं, जो मेले में आने वालों के लिए एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। यहां दूसरे टेंट में यक्षगान की प्रस्तुति मंच पर धमाल मचा रही है। ये मनोरम पारंपरिक कला रूप संगीत, नृत्य, नाटक और आकर्षक वेशभूषाओं के संयोजन से पौराणिक कथाओं का बखान करता है। मध्यरात्रि के बाद भी प्रस्तुतियां मंत्रमुग्ध करती रहीं। ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನದಿ ಆಗಲಿ, ನಿಸರ್ಗವೂ ಆಗಲಿ, ಮರಗಿಡಗಳಾಗಲಿ, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಸರ್ಗವಾದ ಈ ಫಾಲ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. यल्लापुर जात्रे के अंतिम दिन की तैयारी कर रहा है, लेकिन मुख्य मंदिर के पास ढोल नगाड़ों की आवाज हमारा ध्यान खींचती है। यहां का माहौल काफी भयावह है। यहां बकरे की बलि देने वाले लोगों का एक छोटा सा संप्रदाय 2 बकरियों को लेकर गदीके की तरफ बढ़ रहा है। इन
बकरियों की बलि देकर इन्हें कल दोपहर के भोजन में परोसा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों पहले जब जात्रे शुरू हुआ था तो देवी को भेंट स्वरूप एक बैल का सिर अर्पित किया जाता था और फिर उस कटे हुए सिर पर एक दीपक रखा जाता था जो जात्रे के अंतिम दिन ही बुझता था। ये जात्रे के अंतिम दिन से पहले की रात है, अर्थात भक्तों के लिए गदिगे में देवी को देखने का एक आखिरी मौका। ये जात्रे का अंतिम दिन है और पूरा यल्लापुर आज गदिगे के बाहर उमड़ आया है। गदिगे में देवी की पूजा अर्चना समाप्त हो रही है और शेले मंदिर के रणा देवी की अंतिम विदाई के लिए पहले से ही गदिगे में मौजूद हैं। पहले दिन की तरह देवी की मूर्तियों को गदिगे से भक्तों द्वारा उनके सिर पर गड़ी गदिगे या कस्बे की सीमा तक ले जाया जाएगा। मिराची फिर से हड़ी के दोहराएंगे। ढोल नगाड़ों की थाप संकेत दे रही है कि मूर्तियों को बाहर लाया जा रहा है। साथ ही मातुंगी गदिगे के बाहर देवी के पति की झोपड़ी पर मिट्टी का तेल डाला जा रहा है। ये एक प्रतीकात्मक संकेत है जो कि देवी पुराण की झलक दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे जलाया क्यों जाता है? तो कहते हैं कि देवी पिछड़ी जाति के व्यक्ति से शादी करने के बाद उनसे 2 शर्तें रखती हैं। पहली, उसे मांस खाना छोड़ना होगा और दूसरी, शराब पीना भी छोड़ना होगा। लेकिन जब उनके बच्चे अपने पिता को इन नियमों को तोड़ते हुए पकड़ते हैं तो देवी क्रोधित होकर उनके घर को अपने पति के साथ ही जला देती है। इसी तरह देवी अपने पति को मारकर विधवा हो जाती है। सड़कें पूरी तरह लोगों से भरी हुई। कोई भी माहौल की उस अप्रतिम ऊर्जा का अनुभव करने का अपना आखिरी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಅದೃಷ್ಟಗಳಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಲಿ, ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. मूर्तियां अभी गड़ी गदिगे में स्थापित हैं और परंपरा के अनुसार विधवा की चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी और अंतिम मंगल आरती की जाएगी। लेकिन लोग अब घर वापस जा रहे हैं क्योंकि किसी को भी ये अंतिम रीति मूर्तियों को खंडित करने की रस्म देखने की अनुमति नहीं है। ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಗ್ದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆರತಿಗಾಗಲಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನು ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆವತ್ತು. ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 2 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಗಳದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ದೇವರು ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಬಿಳೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ದೇವರು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೋ ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿತೇವೆ. ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮರಾಠಿ ಜನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ದೇವರನ್ನು ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆಚಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆವಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಆ ಜಪಾಟಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. आधी रात को पूरे कस्बे में लाइट बंद कर दी जाएंगी ताकि देवी की मूर्तियों को अंधेरे में ले जाया जा सके. अब 11 दिनों के बाद देवी की मूर्तियों को मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा. सदियों पुराना ये दृश्य हमारी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और लोगों की एकजुटता के प्रयासों का प्रमाण है. ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी की अपनी अलग अलग कहानियां हैं, परंतु बावजूद उसके हम एक बड़ी परस्पर कहानी का हिस्सा हैं. तो ये है जात्रे. जात्रे लोग हैं, वे लोग जो अपने कस्बे के देवता की विरासत की रक्षा करने का प्रयास करते हैं. वे लोग जो पीढ़ियों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. वे लोग जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं. और वे लोग जो इससे अपने काम को भूलकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखते हैं. जैसे ही हंसी और खुशी सार्वजनिक भाषा बन जाती है, सभी सामाजिक बाधाएं अपने आप अंतर्ध्यान हो जाती है. निश्चित रूप से ये हमें इस चिंतन के लिए विवश करती है कि हम उन जीवंत रंगों के बारे में न भूलें जो भारतीय संस्कृति का पर्याय है.